Good morning, student. Lesson number 1, page number 14, working with language. Point number 1, match items in list A with their word meaning in list B. आपको word meaning को match करना है. So this exercise for you. Do it yourself in book. You can take help with the word meanings already given there in your book. Now, question number 2. Each of the following sentences has two blanks. Fill in the blanks with appropriate forms of the words given in the brackets. हर सेंटेंसेस में दो दो ब्लैंक दिए हुए गए हैं और ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, उसकी करेक्ट फॉर्म हमको फिल करनी है. वन एग्जाम्पल इज देयर. ही हैज़ टू हेल्प मी. डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज. ब्रैकेट वर्ड इज प्रॉमिस. प्रॉमिस की करेक्ट फॉर्म लिखनी है हमको. कहाँ पर क्या बनेगा? सो आंसर इज ही हैज़ प्रोमिस्ड टू हेल्प मी. उसने वह मुझसे प्रॉमिस कर चुका है. डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस. क्या तुम सोचते हो कि उसको अपना प्रॉमिस याद रहेगा? सो पॉइंट नंबर 1, द सैड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस कुड मेक हिम चेंज हिज. ब्रैकेट वर्ड इज जज. इन फर्स्ट ब्लैंक राइट डाउन देयर जज. द जज सैड. जज ने कहा that only fresh evidence would make him change his. And second blank write down there judgment. Judgment. The judge said that only fresh evidence would make him change his judgment. जज ने कहा कि केवल फ्रेश एविडेंस ही उसके जजमेंट को बदल सकते हैं. सेकेंड, I didn't notice any series of opinion among the debaters although they from one another over small points. Word is differ. In first blank write down difference, and in second differed. I didn't notice any serious difference of opinion among the debaters. मैंने डिबेटर्स के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं देखा, नोटिस नहीं किया. ऑल्दो हालांकि दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स. हालांकि फिर भी वे एक दूसरे से छोटे छोटे पॉइंट्स में अलग थे. थर्ड, इट इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू बट विल यू एक्सेप्ट माई एज फाइनल. वर्ड इज आंसर. राइट डाउन आंसर इन बोथ ब्लैंक्स. इट इज़ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर. यह बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर देने के लिए. विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल. क्या तुम मेरा जो आंसर है उसको एक्सेप्ट करोगे फाइनली? फोर्थ, इट इजंट दैट शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. वर्ड इज नेसेसरी. इन फर्स्ट ब्लैंक राइट डाउन नेसेसरी, एंड इन सेकेंड नेसेसिटी. नेसेसरी मीन्स ज़रूरी और नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत. इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. Fifth one, hermits are men. How they acquire their, no one can tell. Word is wise. In first blank write down wise, and in second blank wisdom. Hermits are wise men. How they acquire their wisdom, no one can tell. Sixth, the committee has to make Jagdish captain of the team. The is likely to please everyone. Word is decide. In first blank write down decided, and in second decision. The committee has decided to make Jagdish captain to the team, captain of the team. The decision is likely to please everyone. Last one, asking for is as noble as willingness to. Word is forgive. Asking for forgiveness is as noble as willing to forgive. In first blank write down there forgiveness, and in second forgive. So complete this exercise in your book. Now there is other exercise. First one is objective type questions. So first one is what was suggested to be followed strictly. स्ट्रिक्टली किस चीज़ को फॉलो करने के लिए सजेशन दिया गया था राजा को?
a diet for the king, B, a set of rules for the courtiers, C, a daily routine for the king, or D, a timetable for carrying out state affairs. Answer is D, a timetable for carrying out state affairs. Second, what was the king advised to go to magicians for? राजा को मैजिशियंस के पास में जाने के लिए सलाह किस चीज़ के लिए दी गई थी? A, to resolve supernatural issues, B, to solve impossible problems, C, to take decisions on urgent issues, or D, to prolong the king's life. Answer is C, to take decision on urgent issues. तुरंत आने वाली बातों के लिए तुरंत डिसीजन लेने के लिए मैजिशियंस के पास में भेजने की सलाह दी गई थी. थर्ड, द किंग वेंट टू द वुड्स. राजा जंगल गया था. ऑन हिज कैरियट, बी ऑन फुट, सी ऑन हॉर्सबैक, एंड डी इन अ प्लैनेक्विन. आंसर इज बी, ऑन फुट, पैदल पैदल. सो आंसर इज बी, ऑन फुट. फोर्थ, द बियर्डेड मैन रेन टुवर्ड्स द किंग. वो दाढ़ी मूछ वाला आदमी जो था वो राजा की तरफ दौड़ा. क्यों दौड़ा? ए, टू अटैक हिम, बी, टू एस्केप फ्रॉम हिज बॉडीगार्ड्स, सी, टू आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस, और डी, टू सीक द हर्मिट्स ब्लेसिंग. आंसर इज बी, टू एस्केप फ्रॉम हिज बॉडीगार्ड्स. उस राजा के बॉडीगार्ड से बचने के लिए वह उसकी तरफ दौड़ा. फिफ्थ, फॉर द किंग द बियर्डेड मैन वॉज. राजा के लिए वो जो आदमी था दाढ़ी वाला वह कौन था? एन एनिमी, अ डिसाइपल ऑफ द हर्मिट, अ स्ट्रेंजर, और अ स्पाई. आंसर इज सी, अ स्ट्रेंजर. राजा के लिए वह आदमी एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी था. सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन बुक.